A very good afternoon, everybody. We are extremely sorry for the technical glitch that happened on Insta Live. We had tried and tested everything, but पता नहीं last minute में क्या हुआ. Never mind, but we wanted to continue with our promise and deliver this talk to you. So we have with us a life coach and a handwriting analyst, Kamar Ul Nisa Madam. And Madam, she looks at your handwriting and she has a lot to say about you and your personality. So let me also tell you that she is not only a very trained life coach and analyst, but she's a very good friend, and she's a beautiful person inside out. Welcome, Kamar, and I'm very happy to have you with me today. Thank you, Dr. Vishakha. Thank you so much, and hello, my beautiful souls. I am absolutely that thrilled कि आज हम क्या क्या share करेंगे because as Dr. Vishakha already told you that we are very good friends also. And before we dive deep into today's conversation, let me share that I want to express my heartfelt gratitude to amazing Dr. Vishakha that she invited me here on her platform to share with you all about handwriting, about relationships. और इंस्टा पे वो छोटा सा ग्लिच हुआ दैट्स व्हाई हम ऐसे रिकॉर्ड कर रहे हैं एंड थैंक यू सो मच डॉक्टर विशाल. It's a pleasure, Kamar, to have you. कमर, मैं एक अबंडेंस एंड मैनिफेस्टेशन कोच हूँ, आप जैसा जानते ही हैं. एंड एनीथिंग टू डू विथ इनर वर्ल्ड मास्टरी, इट रियली अट्रैक्ट्स मी एंड आई वांट टू नो more about this. So I am not very familiar with what handwriting analysis does, and आप कैसे और क्या एनालाइज करके बताते हैं. मुझे इसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है. आई कैन जस्ट फ्रॉम माई लॉजिकल माइंड कनेक्ट की, जैसा हम बोलते हैं कि इनर वर्ल्ड इज मेड अप ऑफ पैटर्न्स एंड योर एनर्जीज एंड योर मेमोरीज एंड बिलीफ्स. तो मुझे लगता है हैंडराइटिंग भी तो इट इज ऑल अबाउट पैटर्न्स. तो देर दिस पैटर्न कुड बी अ कनेक्शन between your writing and your personality or your subconscious mind. Only that much I can interpret. Now over to you, the ball is in your court. Please help me and our audience to understand what this beautiful art is all about. क्या है ओके, handwriting analysis? डेफिनेटली आई विल that throw some light on this. Firstly, let me introduce myself. As Vishakha already told you that yes, my name is Kamar Nisa and I am a relationship coach, and then I explored this new thing, this handwriting, and became the handwriting analyst and uh, certified graphotherapist. And how I help women, that I help women, जो मेरा पहला एक अपना वो है फोटे है कि I help women to become that हिकमत मीन्स, जो मेरा हिकमत मेथड जो मैं फॉलो करती हूँ वो I help women to become हिकमत मीन्स. Okay, I'm sorry और to I believe. interrupt. Kamar, what is a hikmat queen? मुझे समझ में नहीं आया. What is it? Okay, okay, तो it's my brand name. हिकमत is my brand name. तो हिकमत Oh, means कि we learn this hikmat thing. Hikmat is simply the Urdu meaning of wisdom, but it resonates with me so much that I take this word and mix with that queens because beautiful. Hmm. अगर हमें it's based on four pillars: what to say, when to say, how to say, and what not to say. तो ये चार चीजें अगर एक औरत में क्या किसी में भी आ जाएं तो यस, वी बिकेम हिकमत किंग्स एंड क्वींस. क्योंकि जब आर्गुमेंट होता है Beautiful. उसी टाइम अगर हम वो थोड़ा सा पॉज लेके फिर बात करें, वही व्हाट नॉट टू से एंड वेयर नॉट टू से, थोड़ा सा अगर हम अपनी अपनी इस पे जबान पे थोड़ा सा रखें तो कई लड़ाइयां बच जाएंगी, कई घर टूटने से बच जाएंगे. क्योंकि वही बेस बनता है, क्योंकि पेशेंस नहीं है. तो दैट्स वाई पेशेंस के साथ क्यों ये रिलेटेड है हिकमत, क्योंकि पेशेंस का मतलब है सबर करो भाई. Hmm. एंड हिकमत है कि हिकमत की हमें बात करना आए, हमें कब क्या बोलना है. दैट्स वाई आई Hmm. एम
I keep on that praying this thing. I'm asking this thing from Almighty, please give me hikmat. ऑलवेज मैं बच्चों को भी बोलती हूँ कि रब से हिकमत मांगा करो। जब भी हम किसी शादी में जाते हैं, मैं वहां दुल्हनों को ये दुआ देती हूँ कि रब तुम्हें हिकमत दे दे, तुम्हें आए कि कब कहाँ ब्यूटीफुल, क्या बोलना वेरी नाइस। है। दिस इज द थिंग। एंड कमिंग टू द पॉइंट कि ये क्या है कि हैंड राइटिंग क्या, आपने बोला पैटर्न्स जो है, पैटर्न्स में कैसे काम होता है। एवरी पर्सन हैज देयर ओन, वो जो होता है यूनिक स्टाइल ऑफ राइटिंग, या हर किसी का अलग अलग फोटे है कि वो कैसे लिखता है, कैसे वो अपनी अब तो इतना हो गया, अब तो वही जो क्या क्या पैटर्न्स है ना, वो कभी एक को ऐसे बना दिया जाता है, लेकिन हर चीज का मीनिंग है हमारी हैंड राइटिंग में। अ, जब जब भी कोई इंसान ऐसे लिखता है तो उस हर चीज के एक पैटर्न से अलग अलग मीनिंग निकलता है। बट मैनी मैनी वो फैसिनेटिंग थिंग्स जो मैंने बोला कि जब हम पैटर्न्स बनाते हैं, वी ऑब्जर्व दीज थिंग्स माइन्यूटली कि व्हाट डज, हर चीज का क्या मतलब निकलता है। इट्स लाइक दैट कि रीडिंग ए स्टोरी दैट्स रिटन बिटवीन द लाइन्स, एंड आई ओके। हेल्प पीपल की अंडरस्टैंड देमसेल्व्स बेटर। मुझे लगता है, जो मैं कोशिश करती हूँ अपनी तरफ से कि यस कि थ्रू दिस दैट आर्ट ऑफ विजडम, थ्रू दिस न्यू टैलेंट, कि आई हेल्प देम, कि आपको किसी चीज में आपको हेल्प हो जाए। अगर आप ये लूप गलत बना रहे हो तो लेट मी टेल यू कि ये लूप ऐसे बनाओ, आपकी लाइफ और सुधर जाएगी। अगर आप में ये वाला मतलब कि अगर आप सिंपल की आर्गुमेंट कर रहे हो तो देयर इज अ पैटर्न। अगर एक पैटर्न स्पेशल है कि वो दिखाता है कि ये इंसान आर्गुमेंटेटिव है, तो सिंपली दैट मेक शिफ्ट इन दैट कि ऐसे नहीं लिखो, ऐसे लिखो और आपकी ये चीज ठीक हो जाएगी। अब कुछ एग्जांपल्स देंगी हमारे ऑडियंस को जिससे हम रिलेट कर पाएंगे कि अच्छा, लेट अस चेक हमारे अंदर, हमारे राइटिंग में भी वो पैटर्न है क्या, एंड वी विल ट्राई टू रिलेट आवर बिहेवियर विथ इट। कुछ भी आई एग्जांपल कैन दीजिए। I can, but on this social media we can't reveal these things. ओके, 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 आई एम सॉरी अबाउट दैट, देन फिर तो ठीक है। नो नो, नॉट से या सॉरी। आई कैन अगर किसी की भी अभी हैंड राइटिंग होगी, क्योंकि अब काफी देर से कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट मैंने 100 तक तो कर ली होगी एनालिसिस। अब तो सीधा किसी की हैंड राइटिंग देखो, उसको देख के अच्छा आप ये मत करना। और क्योंकि हम तो इवन इतना की हैंड राइटिंग जो एनालिसिस की रिपोर्ट है किसी के सामने नहीं बोलते हैं। अगर ओके, जिसकी है पर्सन टू वन हम बात वन, करते हैं, हम किसी के सामने किसी को हेपेटिक एनालिसिस नहीं बोलते। ओके, ओके, परफेक्ट। सो कमर, आई वांट टू नो फ्रॉम यू, जैसे आप जब हैंड राइटिंग एनालाइज करते हो तो हमारे अंदर जो हिडन ब्लॉक्स है या लिमिटिंग बिलीफ्स है, कैन यू ऑल्सो अंडरस्टैंड दोज? एब्सोल्युटली। ये हिडन ब्लॉक्स कहीं नहीं कहीं पहले मेरे में भी थे। यस, वी कैन एनालाइज दीज हिडन ब्लॉक्स, एंड यू नो दैट आवर हैंड राइटिंग इज लाइक अ मिरर, जैसे मैंने पहले भी शेयर किया कि मिरर टू आवर सोल्स। व्हेन वी राइट वी आर नॉट जस्ट दैट फॉर्मिंग लेटर्स, वी आर एक्सप्रेसिंग आवर ओन इनर वर्ड। उस टाइम हम क्या बिहेव कर रहे हैं हमारा, क्योंकि हैंड राइटिंग इज अ बिहेवियरल साइंस, ये साइंस है बिहेवियर की। हम बैड फील कर रहे हैं तो उस दिन हमारी राइटिंग डिफरेंट होगी, वी आर हैप्पी तो हमारी राइटिंग ओह, पैटर्न्स डिफरेंट इज इट होंगे। यस, सो? यस। तो ये हमारा रियली ये हमारा सेल्फ वर्थ दिखाता है, हमारे सेल्फ को रिलीज करता दिखाता है कि हाँ इस बंदे में ये चीज है। एंड समटाइम्स दीज आर द लिटिल हिंट्स एंड विस्पर्स इन आवर राइटिंग दैट शोज अस थिंग्स वी माइट नॉट इवन रियलाइज अबाउट ourselves, हमें नहीं समझ आता है। दैट्स व्हाई इट्स एन आई बिकॉज मैं फैसिनेट ही इसीलिए इस चीज की तरफ हुई थी। फर्स्टली तो मैंने ये शुरू किया था कि आई वांट टू हेल्प women because women are not opening up with me as I am doing as a relationship thing, तो women are not opening up. That's the first thing कि why I want to do something extra, कि मुझे इनके साथ में जुड़ जाती मैं इनका दर्द, क्योंकि आई फेस दैट रिलेशनशिप स्ट्रगल्स, तो मैं था कि कोई और ना सहे ये struggle। हम्म। तो ये था मेरा पहला कि क्यों मैं करना चाहती थी।
तो जब मैंने पहले मैंने खुद को जाना है नाउ कि अब तो नाउअडेज तो विमेंस आर ओपनिंग अप विद मी, जब मैं उनको यहाँ से बोलती हूँ दैट यस यू हैव दैट एंजाइटी इशू, तो मेरा एंजाइटी इशू बोलना और उनका बिहाइंड द सीन्स शुरू हो जाता है। एंड यस, ब्यूटिफुल। इट्स अ जेंटल जर्नी। आई लाइक दिस जर्नी ऑफ सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ डेवलपमेंट, और ये हम मैं कहीं किसी की हेल्प कर पाऊँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तो एक बात और बताइए कमर, अ, आपका सबसे इम्पैक्टफुल एक्सपीरियंस विथ योर क्लाइंट एज अ हैंडराइटिंग एनालिस्ट क्या रहा है? कैन यू, आई डोंट वांट एनी नेम्स, बट आप बता सकते हैं कि व्हाट हैपेंड व्हाइल यस, यू एनालाइज्ड एंड हाउ थिंग्स यस, देन चेंज्ड? यस, आई एनालाइज, क्योंकि इस हैंडराइटिंग में अब माय टारगेट ऑडियंस इज वुमेन, राइट, but this handwriting analysis, I took all men also, because when I post somewhere in the on social media Facebook, so some men text me कि हमारा भी कर लो। So firstly I analyzed my husband's handwriting, then जितने भी family members में थे सबकी, and one student, he is तो he is doing his graduation, तो वो मेरे पास उसकी हैंडराइटिंग जब मेरे पास आई तो छोटी सी बात मैंने उसको बोली, तो बोलता है ये कैसे पता। मैंने उसको बोला कि आप अगर किसी को कुछ देते हो तो मतलब मनी, अगर आपने किसी को पैसे दिए आप उसको वापस नहीं मांग सकते हो। ओके। ये तो बोलता है, ये क्या बात हुई, ये कौन सा ब्लैक मैजिक है, आपको कैसे पता चला? क्योंकि ये वाली चीज तो कभी कोई सोच ही नहीं सकता। आपको हम्म। कैसे पता चला? मैंने कहा मुझे पता चला तो तभी, मुझे तो नहीं, मैं कोई, बिकॉज इट्स नॉट अ पामिस्ट्री थिंग, ना हमें हम्म। पास्ट पता चलता है ना हमें फ्यूचर पता है, इट्स अ बिहेवियरल साइंस। I saw this pattern of yours, so that's why I'm हम्म। asking. And he said, what kind of black magic is this? It's not a black magic. It's just a science. It's just a या, behavioral science. जो साइंस And हमें we नहीं laugh. समझ में आती है, हमने अक्सर हम इतना उससे कहते हंसा हैं है क्या उस है दिन। ये। ट्रू। Okay, so this is very interesting, and I would like to tell the viewers कि अगर if you also find this science of handwriting analysis very intriguing, और अगर आपको इच्छा होती है कि आप कमर से अपना handwriting analysis कराएं, तो just tell us in the comments, and she will surely get on a call with you and do your analysis for free. So Kamar, how many you will take? 2 readings? हाँ, तू। Okay, so the best 2 comments will get a free handwriting analysis from our Kamar. And Kamar, one last question I want to ask you कि आप एक lay person को, see we are very busy in our life, सबका everybody is busy in their own ways, but आप एक lay person को as a handwriting analyst क्या बोलना चाहेंगे? What is your message to us? बी काम, अपनी 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 सेहत का ध्यान रखो, अपनी हैंडराइटिंग का ध्यान रखो। अगर आपके पास टाइम है, बैक टू हैंडराइटिंग। मेरा आजकल प्रोग्राम चल रहा है, हमारी मॉर्निंग क्लासेस चल रही है, हमारी ओरिएंटेशन का भी नाम ही इसी पे था, बैक टू स्कूल। Back to क्यों? school. Okay. यस, वाई वाई बैक टू स्कूल? क्योंकि हमने राइटिंग छोड़ दी है, हाँ, राइट। आजकल तो लिखना ही लोग बहुत कम कर दिए, बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन लैपटॉप एंड मोबाइल्स। हम्म। दैट्स वाई हमारी हैंडराइटिंग बिल्कुल बिगड़ गई। अब हमें या। पता ही नहीं है कि अल्फाबेट हम लिख कैसे रहे। वो शॉर्टकट्स तो इतने अपना रहे हैं, बिकॉज लिखना है तो वो कुछ लिखते हैं, मुझे तो उनकी समझ ही नहीं आती है। वी आर डूइंग ये चैलेंज, राइट। इन दैट चैलेंज समवन सेंड मी ए वन दैट, मुझे समझ नहीं आया उसका मीनिंग क्या था। अब मैं यहाँ PHK, आई डोंट नो व्हाट इज दिस, मैंने बहुत कोशिश की क्या है। तो अगर आपको पता है इसका क्या मीनिंग है तो बोलो। मुझे नहीं समझ आई, बट PH क्या, कि मैंने सिर्फ फोन किया है इसका मतलब, पता नहीं क्या है मतलब भाई। द हमने शॉर्ट राइटिंग, फॉर्म्स। अगर हम राइटिंग करेंगे, बैक टू राइटिंग, प्लीज बैक टू राइटिंग, ये मेरा यस। बहुत, यस। आई रिक्वेस्ट यू ऑडियंस, तो प्लीज बैक टू राइटिंग जब आप लिखोगे। क्यों? क्योंकि आपकी रीवायरिंग होगी। यस।
जब हम अल्फाबेट बनाएंगे, हमारी ये है ना, ये जो हम कर रहे हैं, ये रिवायरिंग करता है। ये हमारी सबकॉन्शियस माइंड को जो है रीवायर करता है। दैट्स व्हाई वी आर इन ग्राफोथेरेपी, वी आर मेकिंग दैट दीज पैटर्न्स। वो जो हम ये बात कर रहे हैं, ये हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जा रहा है कि जब हम सुनते हैं कुछ, तो जब ये दोनों चीजें मिल जाती है ना, कॉन्शियस माइंड एंड सबकॉन्शियस माइंड, तो तब ये मिरेकल्स हमारी जिंदगी में आते हैं। और यही मेरा रिक्वेस्ट भी है, एंड एक गुड मैसेज भी है, बैक टू राइटिंग, बैक टू स्कूल, बैक टू योर रूट्स जो था, back to your roots. So you feel that miracles in your life. And थैंक यू सो मच कमल, दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग। एंड मैं भी ओल्ड स्कूल थॉट की हूँ, आई लव टू राइट। एंड yes, कभी मुझे टाइम मिले तो आई वुड रियली लव टू अंडरस्टैंड हाउ दिस वर्क्स एंड इम्प्रूव on my writing and personality also. Thank you so much for being here with us, and more power to you.